Okay, so it is 7:02 p.m. and this is a session for August 24 examinees, CFA Level 3. So those who are sitting for August 24 examination, CFA Level 3, I am organizing a special session for them right now. We are standing on the, I think, 6th of July. And exams are perhaps somewhere around the 15th of August. Okay, let's take round figures. 5th July, 15th August. So we have around 40 days left for the exam. Okay, I'm talking in round figures. 5th July, we are standing, and 15th August are the examinations. So 40 days are left. And I hope in this particular session, I will be able to increase the probability of your clearing the exams. Let's make that happen. Prior to the session, a Google form was shared with you, and Google form may whatever queries you had, we have collected. I have gone through the queries, and I will categorize them and discuss them in some time from now. Till that moment, you please tell me a particular question का answer बताना. Okay, I'm looking at the chat. So Bhavesh, Mayank, Pratik Chaudhary, Yasir Merchant, Surya. Okay, I'm looking at the chat. Can you please confirm whether my audio and video are fine? There could be some darkness at the background, doesn't matter. Nikhilesh, Riddhi, Mayank, Imit, Chirag. Okay, perfect. Everything is fine. So, answer a question. There is a couple aged around 65 years old. Okay, there's a couple, both 65 years old. I don't want to go into too much details. Now, the question is asking us that which risk are they most suffering from? Is it longevity risk, or is it mortality risk, or is it disability risk? There's a couple around 65 years old, and the question is which risk is the most prominent for them? Is it longevity risk? Is it mortality risk? Or is it disability risk? Yes, please. There is a couple around 65 years old. You want to take 75 bhi chalega. Take a Trump type. And which risk is most prominently faced by them? Longevity risk, or mortality risk, or disability risk? I'm waiting for your answers. I'm waiting for your answers. I am not getting the, I am getting the answer, but I think my screen needs to be scrolled down. Okay. So I'm very happy that 80% or 90% students have answered correctly. Okay, some are saying all the three. It was a multiple choice question. All the three कैसे answer होगा? The question is, कौन सा risk सबसे ज़्यादा prominent है? Himanshu is saying all the three. तब तो सीधा ये होना चाहिए कि सर everybody faces all the risk in the world. Therefore, all the risks are important. जो भी risk होते हैं ना, सभी तो face करते हैं. The answer is longevity risk. The answer is longevity risk. कि अगर वो लोग ज़्यादा साल जी लिए, if they live for more than their life expectancy, in that case, कहाँ से पैसा आएगा? Okay, you must be remembering that simulation वाला stuff. जहाँ शॉर्टफॉल रिस्क निकालते हैं अपने सिमुलेशन से. लॉन्जिविटी रिस्क इज द आंसर. डिसेबिलिटी रिस्क बहुत जने आंसर लिखा है. दैट्स सो सरप्राइजिंग. डिसेबिलिटी रिस्क क्या चीज का होता है? इफ आई एम अर्निंग एंड आई एम डिसेबल्ड, माय अर्निंग्स विल स्टॉप. इफ आई एम अर्निंग्स एंड आई become disabled, so my earnings will stop. These people who are 65 75 years old, obviously they are not earning. There's no question of disability risk. So those who have answered disability risk, they are thinking that sir उनके disable होने का chance ज़्यादा है. Those who have answered mortality risk, they are thinking that sir उनके मरने का chance ज़्यादा है. This is not level 3 का preparation. You don't know the meaning of that at all. जो बूढ़ा हो गया उसको रिस्क जो है डिसेबल का नहीं है. कि डिसेबल हो गया तो ऑफ कोर्स बहुत दुख की बात है. मरने का नहीं है, ऑफ कोर्स बहुत दुख की बात है.
उसको रिस्क फाइनेंशियल टर्म्स में लॉन्जिविटी का है कि अगर वो 70 ईयर्स के हिसाब से प्लानिंग किया था, एंड व्हाट इफ ही लिव्स 95 ईयर्स, तो 25 साल उसका कौन संभालेगा, जिसके लिए अपने एन्युटीज बाई करते हैं रिटायरमेंट पे। एनीवेज, ये मैं जनरल पूछ रहा था। दे माइट बी पीपल यहाँ पे जो लोग वैसे भी ज्वाइन कर लिए होंगे जिनका अगस्त में ड्यू नहीं है, बट तब होता है ना, चलना यार ज्वाइन करते एक बार, ठीक है। तो मे बी उनकी तरफ से वैसा आंसर आया होगा। नाउ CFA लेवल 3 में मैं डेटा देख रहा था, कई सारे स्टूडेंट्स हमें वैसे ज्वाइन कर रहे हैं आजकल हु वे नॉट आवर स्टूडेंट्स, मतलब हो सकता है सेल्फ प्रेपरेशन किए थे या कहीं और से क्लासेस लिए थे, एंड उसके बाद जाके दे ज्वाइंड अस एंड दे हैव क्लियर्ड। सो what is it that is lacking? At the same time, there are some students who are ours जो लेवल 2 पास किए थे कोविड के जस्ट बाद जब एग्जाम हुआ था, एंड उनमें से 4-5 स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू क्लियर। आई थिंक 3 टर्म या 4 टर्म हो गया। सो इट बोथ वेज आउट। आई डोंट नो कौन से नंबर्स ज्यादा बड़े हैं। मेरे खुद के स्टूडेंट्स ऐसे, मैं 5 स्टूडेंट्स को जानता हूं जो 3-4 अटेम्प्ट से पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पर ऐसे करीब 30-35 स्टूडेंट्स हैं जो लोग कहीं और से पढ़ के यहाँ पे पढ़े और उसके बाद लेवल 3 क्लियर कर लिए। सो आई डोंट नो व्हाट इज द स्टेट ऑफ इज, लेट्स डिवोट सम टाइम टू डिस्कस द सेम। The queries that have come from your side are of two types. One is constructive response questions, कैसे attempt करें? Okay, constructive response questions कैसे attempt करें? I would not like to call them essay questions. I think calling them essay type question is a sin. If you are thinking those are essay type questions, वही तो गया। Because जब essay type बोलते हैं तो क्या लिखते जाते हैं। Those are not essay type. Let's not call them essay type. They are constructive response questions. उसको कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे रीड करें, कैसे सोचें, कैसे लिखें, कितना लिखें, ठीक है। तो मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, दीज आर सम ऑफ द क्वेरीज अराउंड 60% ऑडियंस का। एंड द रेस्ट 40% का क्वेरीज है कि सर मेरा ये वाला टॉपिक बाकी है, कैसे करूं अब, या मेरा ये वाला टॉपिक हो गया पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है, आप कोई रिव्यू क्लास ले लीजिए इसके ऊपर। या फिर सर when I am doing the questions, how do I analyze, how do I understand, how do I retain, I am forgetting, मैं भूलते जा रहा हूं। So before we come to the answers of the discussion of all this, let me say one thing very clearly. This time around, the secret of passing the CFA level 3 exams for those who have more or less done the curriculum, जिनका हो गया है करिकुलम, अब जो कुछ भी नहीं पढ़ा है, आई डोंट नो द आंसर, बट जिसका हो चुका है, व्हाट यू आर लैकिंग इज द मॉक टेस्ट्स। आपको मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए, जो भी रिसोर्सेज मिले सब जगह का मॉक टेस्ट देना चाहिए। एंड खासकर कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, यू नीड पर्सनल ग्रेडिंग। अगर कोई स्टूडेंट है जिसको कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स में सुपर कॉन्फिडेंस है, तो ही डजंट रिक्वायर पर्सनल ग्रेडिंग। बट अगर कोई स्टूडेंट है जिसको ये समझ में नहीं आ रहा मैं लिखता हूँ उस पर मार्क्स मिलता है क्या मेरे को, तो इन दैट केस पर्सनल ग्रेडिंग रिक्वायर्ड है। एंड अकॉर्डिंगली मैंने अपने आप को इसलिए अवेलेबल रखा है, ओके, फ्रॉम द 5th of August to the 15th of August, so that I can personally grade the papers along with a big team of mine. Okay, so that's the advice to you. If you are not going for those mocks with personal grading, so in that case you may lament later on. Okay, anyways, right now we will start with a particular question just to see how you are faring. So let's go to a particular constructive response question. एक कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में चल रहे हैं बीटी, हिमांशु, रिधि, निखिलेश, ओके, यशवा, इमित, अशरा, सौरभ। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन का साइज को बढ़ा नहीं सकते अभी, बिकॉज अदरवाइज सॉल्यूशन भी दिख जाएगा। वी मेड अ मिस्टेक, क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन इमीडिएटली आ गया, सो वी कांट इंक्रीज द साइज। लेट इट बी दिस वे, प्लीज go through the question. So this person, CFA, is an analyst for an endowment fund of a small university. Endowment operates with a long-term investment horizon, but has significant near-term operating expenses and needs to maintain. Now the problem is that if you read it this way, अगर आप इस तरह से read करेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम फालतूबाजी में चला जा रहा है। Let's stop over here. अगर आप इस तरह से read करना चालू करते हैं क्वेश्चन को, you are unnecessarily wasting your time. You should start from the question. कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, रीडिंग से स्टार्ट नहीं करना है। इफ यू आर नोटिंग इट डाउन, प्लीज नोट, दैट्स द फर्स्ट एडवाइस।
कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स के क्वेश्चन को पहले रीड करना है, फिर जाके राइटअप को रीड करना है। प्लीज प्लीज राइट इट डाउन। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स के क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, फिर राइटअप को। ओके, सो इन दैट केस आई रिक्वेस्ट बीडी टू फर्स्ट show the question. Yes, stop. So this is the question. Question number one. Recommend how should Morris allocate between equity and real estate? Recommend is the word. Recommend how should Morris allocate between equity and real estate? फिर ऑप्शंस दिया हुआ है, इंक्रीज द एलोकेशन टू रियल एस्टेट, डिक्रीज टू रियल इक्विटी, डिक्रीज टू रियल एस्टेट, इंक्रीज टू इक्विटी। थर्ड है कीप द एलोकेशन एज इट इज। तो आपको समझ में आ गया, जो राइटअप है उस पर देखना पड़ेगा कि इक्विटी कम रियल एस्टेट ज्यादा करना है या रियल एस्टेट कम इक्विटी ज्यादा। टॉपिक भी समझ में आ गया, एसेट एलोकेशन। टॉपिक भी समझ में आ गया, एसेट एलोकेशन। और सेकंड मतलब केवल बताना है, यू नो दैट कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स में एबीसी के बजाय पांच पांच ऑप्शंस भी आ सकता है। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स का जो मल्टीपल चॉइस है उसमें पांच पांच ऑप्शंस भी आ सकता है, यहाँ पे खैर तीन ही है। ठीक है, तो अब जस्टिफाई योर रिकमेंडेशन दिया, जस्टिफाई योर रिकमेंडेशन। आपको पता है कोई भी कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स 12 मार्क्स का आएगा, 12 मार्क्स का, 12 पॉइंट्स का। तो अगर उसमें ये एक क्वेश्चन है, देखते कितने का पता नहीं है अभी अपने को। बीडी इज रिक्वेस्टेड टू स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन, देन गो टू स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जा रहा है, उसको स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग करना पड़ा वरना आंसर दिख जाता। तो क्वेश्चन नंबर 2 में चल रहे हैं। फर्स्ट वी विल लुक एट द क्वेश्चन, देन वी विल लुक एट द राइट अप। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया सर, एसेट एलोकेशन का है और इक्विटी वर्सेस रियल एस्टेट में डिसाइड करना है। नाउ वी कैन शो द स्क्रीन अगेन, क्वेश्चन नंबर 2। दिस क्वेश्चन नंबर 2, 6 मार्क्स का, वो भी 6 मार्क्स का था। रेकमेंड हाउ मॉरिस शुड एलोकेट बिटवीन कैश एंड टिप्स। कैश एंड टिप्स, उसके बीच में एलोकेशन, सेम तीन ऑप्शन है। इंक्रीज टिप्स, डिक्रीज कैश, इंक्रीज टिप्स, इंक्रीज कैश, कीप अनचेंज्ड। ओके, इक्विटी और रियल एस्टेट में अलग तरह का ऑप्शंस था। उसमें ऑप्शंस क्या था, इक्विटी को बढ़ाओ रियल एस्टेट कम करो, या इक्विटी कम करो रियल एस्टेट बढ़ाओ, या फिर सेम रखो। और इसमें ऑप्शंस क्या है, इन टिप्स को बढ़ाओ कैश कम करो, पर सेकंड ऑप्शन क्या है, टिप्स और कैश दोनों को बढ़ाओ। और थर्ड क्या है, कीप द एलोकेशन अनचेंज्ड। बी प्रिपेयर्ड। तो दीज आर द क्वेश्चन, 12 पॉइंट्स का है, 6 पॉइंट्स ईच। मे बी रेकमेंड करने का 2 मार्क्स है और 4 मार्क्स जस्टिफिकेशन का है, या रेकमेंड करने का 1 मार्क्स और 5 मार्क्स जस्टिफिकेशन का है। तो जस्टिफिकेशन हैज टू बी रॉक सॉलिड। रॉक सॉलिड डज नॉट मीन दैट जस्टिफिकेशन हैज टू बी लेंथी। इंडियंस विल थिंक दैट अगर 5 नंबर का जस्टिफिकेशन है तो कम से कम 1-2 पेज तो लिख के आएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, जस्टिफिकेशन कैन बी जस्ट इन 2 लाइन्स और 3 लाइन्स। यस, वी विल गेट 5 मार्क्स और 4 मार्क्स। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। जो लोग लिख रहे हैं पॉइंट्स, उनको लिख लेना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स में पहले क्वेश्चन रीड करना है, कमांड वर्ड देखना है, रेकमेंड, जस्टिफाई, कमांड वर्ड देखना है, मार्क्स देखना है, मन में बैठाना है कि कैसे कैसे एलोकेशन होगा। ऑप्शंस को ठीक से पढ़ना है, जैसे मैंने ऑप्शंस ठीक से पढ़ा ना, कि कैश और टिप्स में दोनों में एलोकेशन बढ़ाने का ऑप्शन नंबर बी है, जबकि इक्विटी और रियल एस्टेट में दोनों में बढ़ाने का नहीं था। उसमें था इक्विटी बढ़ाए रियल एस्टेट कम करें, इक्विटी कम करें रियल एस्टेट बढ़ाएं या सेम रखें। ठीक है, आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, एक बार मैं नहीं चाहता हूं कि कुछ और हो। एक बार बताएं प्लीज, जो लोग स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ये सॉरी, जो लोग राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं चैट में, यू हैव अ सर्टेन प्रॉब्लम, बताइए। इस क्वेश्चन का घुस गया आपके, ये क्वेश्चन कैसे होगा। ये क्वेश्चन के बारे में बात हो रहा है ग्रीष्मा, अभी केवल इस क्वेश्चन के बारे में बात हो रहा है। प्लीज अर्जुन बनो, केवल इस क्वेश्चन के बारे में बात हो रहा है अभी। क्वेश्चन घुस गया है, ठीक है, परफेक्ट है। अब चलिए राइट अप देखते हैं। वो देखते हैं, स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग, देन शो वंस अगेन।
So now we are going to see the write-up. Here is the write-up. Whatever CFA analyst for an endowment fund of a small university. Endowment has a long-term horizon, सबको पता है, and significant operating expenses needs to maintain sufficient annual income. इसको ठीक से हौले रीड करते बर्बाद हो जाएंगे. अगर इसको ठीक से हौले रीड करते बर्बाद हो जाएंगे, बिकॉज आपको एंडाउमेंट का पता है, कुछ नहीं था शुरू के 4 लाइंस में. इफ समबडी इज अंडरलाइनिंग हाईलाइटिंग इन द एग्जाम ना, तो इन दैट केस क्या बोलूं, द करंट पोर्टफोलियो एलोकेशंस एंड एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिटर्न्स आर एज फॉलोज. वी आर लुकिंग एट द एलोकेशन. इक्विटीज और रियल एस्टेट का फर्स्ट क्वेश्चन था. इक्विटीज में 40% और रियल एस्टेट 15% है. दोनों का रिटर्न्स पे ध्यान दिया. 10%, 9%, क्वाइट सिमिलर. 10%, 9%, इक्विटी का मार्जिनली बेटर. और कैश और टिप्स पे ध्यान गया. 5%, 5%. रिटर्न कैश का 1% और टिप्स का 3%. कैश का 1%, टिप्स का 3%. ये डेटा सबको दिख गया होगा. उसके अलावा क्या दिख रहा है? लॉन्ग टर्म ट्रेजरी बॉन्ड्स है जिनमें 15% एलोकेशन है. ओके, लॉन्ग टर्म ट्रेजरी बॉन्ड्स है जिनमें एलोकेशन जो है दैट इज 15%. हाई यील्ड बॉन्ड है 10%. इंटरनेशनल बॉन्ड है 10%. सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो फर्स्ट 3 है ना, कैश, लॉन्ग टर्म ट्रेजरी और टिप्स, तीनों सेफ है. सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो फर्स्ट 3 है, कैश, लॉन्ग टर्म ट्रेजरी और टिप्स, तीनों सेफ है. हाई यील्ड बॉन्ड, इंटरनेशनल बॉन्ड्स बॉन्ड कैटेगरी में रिस्की है. ठीक है ना, ये समझ में आया. अब नीचे देखते हैं. मॉरिस इज कंसिडरिंग reallocating. I hope we are connected. I hope we are connected. There is no issue. I hope we are connected. There is no issue. Okay, yes, perfect. Okay, sure. Morris is considering reallocating the portfolio to address changing economic conditions for the next year. तो next year conditions क्या दिया है? Inflation, GDP and short-term interest rate. All are 2%. मैंने easy figures लिया है. 2% है. Inflation 2% चल रहा है. GDP 2% growth rate जाहिर है. Short-term interest rate 2%. Market consensus estimate. Market's consensus estimate for the next year. Inflation 3.5, GDP 3%, short-term interest rate 3%. That is the market's consensus estimate. Morris's differential estimate next year. Morris's differential estimate. Inflation 5%, GDP 3%, short-term interest rate 4%. So Morris का inflation के बारे में और short-term interest rate के बारे में differential estimate है. Take your time, digest the data. I'm asking some question to you. जो मार्केट का कंसेंसस एस्टिमेट है, मार्केट कंसेंसस, इसका मतलब इट इज ऑलरेडी देयर इन द प्राइस और इट इज नॉट देयर इन द प्राइस. मार्केट का कंसेंसस एस्टिमेट फॉर द नेक्स्ट ईयर, बट है वो मार्केट का कंसेंसस एस्टिमेट, क्या वो प्राइस में ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड है या नेक्स्ट ईयर आने में प्राइस पे रिफ्लेक्ट होगा? मार्केट का जो कंसेंसस एस्टिमेट है, क्या वो प्राइस में ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड है या वो प्राइस में नेक्स्ट ईयर रिफ्लेक्ट होगा? मार्केट का कंसेंसस एस्टिमेट नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो क्या वो अभी के प्राइस में ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड है या वो नेक्स्ट ईयर प्राइस में रिफ्लेक्ट होगा? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू ऑल. इट्स ऑलरेडी देयर इन द प्राइस. मार्केट कंसेंसस एस्टिमेट मतलब इट्स ऑलरेडी देयर इन द प्राइस. तो वो जो 2 से 3.5 है, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट 2 से 3 है, दैट इज नॉट अ न्यू इंफॉर्मेशन. न्यू इंफॉर्मेशन है 3.5 से 5. शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट 3 से 4. That is something that's going to cause a change in the prices of whatever asset class. Understood? बोलते ना मार्केट में, there was some dialogue of Charlie Munger. Okay, I don't remember and I won't be able to say it so nicely. His dialogue was, if you bet on the best horse that is expected to win and it wins, you will not earn supernormal return. But if you bet on the horse that is expected to come the 13th, and if the horse comes 8th, you will make alpha. You have to have a differential forecast. Otherwise, what is the scope of alpha? ठीक है, तो मार्केट्स कंसेंसस एस्टिमेट ऑलरेडी प्राइस में है.
व्हाट वी फाइंड ओवर हियर सा इन्फ्लेशन जोर से बढ़ने वाला है। 2 से 3.5 तो सोचा गया था, पर 3.5 से 5, 1.5%, एक तरह से अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है। वैसे ही उस अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन से घबरा के जो सेंट्रल बैंक है, वो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को ऑलमोस्ट डबल कर देगा, 2 से 4। हमारा सोचा गया था 2 से 3, वो कर देगा 4। ठीक है, तो राइज इन इंटरेस्ट रेट होने वाला है। यस, तो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज इक्विटी वर्सेस रियल एस्टेट। यू वांट टू answer please, equity versus real estate. I am not showing the options right now. BD, no need to show the options. Equity, real estate, what do you have to say? दोनों का एलोकेशन सेम रखे, या इक्विटी को डिक्रीज, रियल एस्टेट को इंक्रीज, या इक्विटी को इंक्रीज, रियल एस्टेट को डिक्रीज? व्हाट डू यू से? ओके, आई एम वेटिंग फॉर सीइंग एवरीबॉडीज आंसर। यहाँ पे कोई नाम लेके तो होगा नहीं, सब अपने मन में जानते हैं किसने क्या आंसर दिया। तो व्हेन आई से द करेक्ट आंसर, पीपल कैन बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि वेदर दे हैव आंसर्ड करेक्टली और नॉट। गुड, वेरी गुड। Okay, so those who are answering up till now, I can see around 70% answers are correct. 30% answers are wrong. And I think you know very well, अगर आपका आंसर रॉन्ग है रिकमेंडेशन, तो जो आपका लॉजिक है, अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो जो जस्टिफिकेशन है उस पे मार्क्स मिल सकता है क्या? अगर आंसर रॉन्ग है तो क्या जस्टिफिकेशन में मार्क्स मिल सकता है क्या? कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स में मैं पूछ रहा हूं, अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो जो जस्टिफिकेशन है उस पे मार्क्स मिलेगा क्या? ये तो क्लियर हो जाए अपने प्लीज। अगर आपका रिकमेंडेशन रॉन्ग है तो जस्टिफिकेशन है मार्क्स मिलेगा क्या? आंसर है नो। 99% केस में आंसर है नो, केवल 1% केस में आंसर है यस। सुन लेना, जस्टिफिकेशन में 1% सिचुएशन है मार्क्स मिल सकता है। वो बताए कब? जब हो सकता है जो स्टूडेंट ने, जैसे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा डिक्रीज इक्विटी इंक्रीज रियल एस्टेट। इस क्वेश्चन का आंसर क्यों होगा बाद में आते हैं। डिक्रीज इक्विटी इंक्रीज रियल एस्टेट, दिस इज द आंसर, अनडिस्प्यूटेबल आंसर। डिक्रीज इक्विटी इंक्रीज रियल एस्टेट, जिसने भी करेक्ट बोला था इनकरेक्ट बोला था, मैं नाम नहीं लेने वाला हूं। अब हो सकता है स्टूडेंट ने यही आंसर सोचा कि डिक्रीज इक्विटी इंक्रीज रियल एस्टेट, पर उसने लिखते समय, लिखा लिखना पड़ेगा ना, उसने लिख दिया इंक्रीज इक्विटी डिक्रीज रियल एस्टेट। वो समझा ही नहीं वो क्या लिख दिया, और जस्टिफिकेशन उसने दिया है डिक्रीज इक्विटी इंक्रीज रियल एस्टेट। आप समझते हो? कोई स्टूडेंट आंसर समझ गया डिक्रीज इक्विटी इंक्रीज रियल एस्टेट होगा, उसने जस्टिफिकेशन उसी का दिया, पर बेचारा लिखते समय रिकमेंडेशन जो है ना, वो लिख दिया इंक्रीज इक्विटी डिक्रीज रियल एस्टेट। यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग। ऐसा होता है क्या? ऑफ कोर्स, जब पागलपन छाए तो कुछ भी हो सकता है। ओके, इसलिए हम लोग तो ये बोलते हैं कि भाई, वो जो रेकमेंडेशन लिखना है ना, वो 2 मिनट बाद लिख देना, पहले तुम जस्टिफिकेशन लिख देना। पहले तुम जस्टिफिकेशन लिख दे, फिर तुम रेकमेंडेशन लिख देना। जैसे एक स्टूडेंट मेरे से जो मिलने आया था, मैंने बोला ना, उसने पहले करेक्ट आंसर बोला था। जो मैंने उससे पूछा, मैंने एक वीडियो निकाला था उस पर, थिंक इन हिंदी राइट इन इंग्लिश। उसने करेक्ट आंसर बोला था। उसके बाद जब वो लॉजिक बोलने गया, तो लॉजिक बोल नहीं पाया और अल्टीमेटली जाके आंसर ही चेंज कर दिया। तो यू नेवर नो। समझ गए? तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। आंसर इज डिक्रीज इक्विटी इंक्रीज रियल एस्टेट। तो रौनक, आपका आंसर गलत है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन अगर हुआ तो द प्राइस अर्निंग्स रेशियो ऑफ द मार्केट विल फॉल। अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन से द पी रेशियो ऑफ द मार्केट विल फॉल। Okay, P ratio of the market will fall due to unexpected inflation, because companies will not be able to suddenly charge higher prices, maintain their margins. So the cash flows of the companies will be hit. Okay, the discount rate will go up and P ratio will fall. P ratio will fall. अगर unexpected inflation हुआ तो P ratio will fall. P ratio will fall. और तो और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट अनएक्सपेक्टेडली बढ़ रहे हैं, तो वंस अगेन द डिस्काउंट रेट विल राइज एंड देयरफॉर योर पी रेशियो विल फॉल। ओके, मार्केट का पी रेशियो बढ़ेगा, और इंपेरिकल एविडेंस है, उल्टा पुल्टा इन्फ्लेशन अगर हो जाए ना, जैसे 2022 में होना चालू हुआ था उल्टा पुल्टा इन्फ्लेशन, द मार्केट फेल वर्ल्ड ओवर। ओके, द मार्केट फेल वर्ल्ड ओवर। तो अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन से प्राइस अर्निंग रेशियो विल फॉल। Unexpected rise in interest rate, say price earning ratio will fall. Okay, because of which equity market will fall. It is not expected to provide that good return.
रियल एस्टेट जो है ऑन दी अदर एंड इज एन इन्फ्लेशन हेज। कितने जन ने आंसर दिया, ब्यूटीफुल। रियल एस्टेट इज एन इन्फ्लेशन हेज। अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन होगा ना, अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, तो जो लीज रेंटल्स है, भाड़ा, वो बढ़ जाएगा। एट द सेम टाइम अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन होने से जो अपना प्रॉपर्टी प्राइसेस है वो भी बढ़ सकता है, बिकॉज properties are considered to be an inflation hedge. There could be a shift towards property. We have studied from level 1. Real estate is an inflation hedge. Okay, real estate is an inflation hedge. Accordingly, और दूसरा बात है, the expected return on both of them are virtually same. So because of which, given the differential estimate of Morris, ultimately we should decrease equity का exposure and we should increase real estate का exposure. By how much वो पूछा भी नहीं है, आपको बोलना भी नहीं है. Maybe somebody will do 5%, तो 35% equity, 20% real estate, maybe 30% equity, 25% real estate. Let's think about the stupidities over here. सपोज आपको आंसर समझ में आ गया है, सपोज आपको आंसर समझ में आ गया है, अब आंसर समझ में आ गया है, आपने लिख दिया रिकमेंडेशन डिक्रीज इक्विटी इंक्रीज रियल एस्टेट। अब जस्टिफिकेशन कैसे लिखेंगे? जस्टिफिकेशन लिखते समय अगर आप लिखते हैं, सुनिएगा, अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन डैश लोअर पी रेशियो डैश इक्विटी मार्केट्स विल फॉल। रीजन नंबर 2, unexpected rise in interest rate dash rise in discount rate dash equity market will fall. Number 3, unexpected inflation dash real estate dash inflation hedge. कोई एक्स्ट्रा ऐड करना चाहे तो रेंटल्स एंड प्रॉपर्टी प्राइसेस राइज डैश रियल एस्टेट विल गो अप. Expected return on equities and real estate more or less same. Hence, equity exposure should be decreased, real estate exposure should be increased. This should be the answer. Exact answer will differ. मैंने हिंदी में तो समझ में आया. हिंदी में क्या हो गया? अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन से पी रेशियो गिरेगा, इसलिए इक्विटी मार्केट गिरेगा. अनएक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट राइज होने से डिस्काउंट रेट बढ़ेगा, पी रेशियो गिरेगा, इक्विटी मार्केट गिरेगा. अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन से रियल एस्टेट तो इन्फ्लेशन हेज होता है, उस पर रेंटल्स भी बढ़ेगा, प्रॉपर्टी प्राइसेस भी बढ़ेगा, तो रियल एस्टेट बढ़ेगा. ऐसे भी एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्विटी और रियल एस्टेट का मोटा मोटी सेम है. तो इन द लाइट ऑफ द डिफरेंशियल फोरकास्ट ऑफ मॉरिस, अपने को इक्विटी में एक्सपोजर कम करना चाहिए, रियल एस्टेट में ज्यादा करना चाहिए. इस चीज को जितना छोटा हो सके उतना छोटे में लिखना है. यहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज कौन सा हुआ? टेक्निकल लैंग्वेज हुआ आपने जो बोला रियल एस्टेट इन्फ्लेशन है, जो ब्यूटीफुल. इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग लीज रेंटल्स एंड प्रॉपर्टी प्राइसेस, अगर आप लिखते हो रियल एस्टेट इज एन इन्फ्लेशन हेज, हो गया काम. ठीक है, योर वर्क इज डन. रियल एस्टेट इज एन इन्फ्लेशन हेज. somebody wants to go deeper into सर रियल एस्टेट का प्राइस क्या होता है, एनओआई बाय कैप रेट. तो अगर डिस्काउंट रेट बढ़ेगा तो कैप रेट बढ़ेगा, तो सर रियल एस्टेट गिरेगा, बट एनओआई भी तो बढ़ेगा ना, एनओआई भी तो बढ़ेगा. यू वांट टू गो डीपर, यू कैन. देन यू स्टार्ट टीचिंग टू दैट पर्सन. दिस इज नॉट टीचिंग, दिस इज जस्ट टेलिंग. there's no need to get into gray areas. there's no need to write big answers, because time management is an issue because of two reasons. People are not investing time in thinking. People are straight away writing some बेवकूफ, some Tom Dick Harry, especially CA students पुराना ने बोल दिया है, जैसे ही पेपर आए भाई लिखना चालू कर देना. एकदम भी नहीं. 50% टाइम सोचना है, उसके बाद लिखना है. सोचना हिंदी में है, फिर हिंदी को इंग्लिश में सोचना है, फिर इंग्लिश में कम सोचना है, फिर लिखना है डैश डैश देके. 50% टाइम सोचना है, क्या द क्रक्स मैटर से रिलेट करके हिंदी में सोचना है, फिर उसको इंग्लिश में सोचना है, फिर सोचना है कम कैसे लिखें, फिर उसको लिखना है, फिर रिकमेंडेशन लिखना है. टाइम लगेगा, हाँ लगेगा, पर ये कमती टाइम लगेगा एज कंपेयर टू पचर 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 पचर. People are doing what? People are explaining something, then they are re-explaining that thing, then there are some students, you know what, who are doing what? They are writing in the answer constructive response में suppose लिख दिया कि क्या बोलते हैं, unexpected inflation, discount rate will rise, therefore P ratio will fall. Then they are writing, for instance, in 2022 what happened? बाप रे बाप, ये जो मैं बोला वो तो explanation था. You are not supposed to give analogy, you are not supposed to give examples, you are not supposed to elaborate.
Because if you are doing that, you are doing at the cost of leaving your paper. Don't do that mischief. You are not expected to write in good sentences, complete sentences. I have told this many times. A problem के justification में number of reasons बोला हुआ नहीं था. Because आप लोग को पता है, because मेरा इतना सारा वीडियोस गया है कि justify में अगर 2 रीजन देता तो 2 ही रीजन देना है, 3 तो 3 ही देना है. तो therefore मैंने यहाँ पे justify में number of reasons बोला ही नहीं. मैंने खुला क्वेश्चन रखा justify. तो it has to be a complete answer. इक्विटी में एक्सपोजर कम क्यों करें, रियल एस्टेट में एक्सपोजर क्यों ज्यादा करें. ठीक है, अ कंप्लीट आंसर इज व्हाट वी हैव सेड. ठीक है ना. ओके, लेट मी शो यू द आंसर. ओके, नाउ ये जो गाइडलाइन आंसर है, ये जो गाइडलाइन आंसर है, ये गाइडलाइन आंसर चैट जीपीटी से जनरेट हुआ है. ये गाइडलाइन आंसर चैट जीपीटी से जनरेट किया. हाँ सर, आप चैट जीपीटी यूज करते हैं चेप चेप के. If you all are students of CFA, you all are understanding what is artificial intelligence and machine learning going to do. It is going to amplify human capability. It is going to amplify human capability for those humans who are going to use it. Those humans who are not going to use it, their jobs will be taken away. Sir, CFAs का yes, CS का yes, डेटा एंट्री वाले का yes, टाइपिंग वाले का yes, ब्लॉग राइटर का yes. जो लोग भी नए टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करेंगे, देयर जॉब्स विल बी गॉन. बट जो लोग नए टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे एज अ टीचर, दे विल बी एबल टू एम्पलीफाई देयर रिसोर्सेज. आप लोग को पता है, सिंस यू हैव स्टडीड फ्रॉम मी, मेनी ऑफ यू आउटसाइड स्टूडेंट्स आल्सो देयर, दैट मेरा हैबिट है ऑडियो ऑडियो ऑडियो. चैट जीपीटी क्या सुंदर कर दिया है मेरे लिए. ओके, चैट जीपीटी क्या कर दिया है, वो ऑडियो फीचर है. मैं उसके बात करता हूं, वो रिप्लाई करता है. आई स्पीक इट आउट इन हिंदी, इंग्लिश, एंड इट रिप्लाइज. If you are not using ChatGPT 4o audio feature, I'm telling you, you are missing out. और उसका कोई क्लास थोड़ी लूंगा. आई एम नॉट अ यूट्यूबर कि मैं उसका क्लास लूंगा यहाँ पे ChatGPT 4o चलाऊं. Oh God, if I have to go down to this, I don't know what will happen. So I'm going to ChatGPT 4o. ये ChatGPT 4o पे, और यहाँ जाके मैंने बोला, what is the relationship between unexpected inflation rise and P ratio? Price to earnings, PE ratio, or PE ratio, tends to have an inverse relationship with unexpected inflation. When unexpected inflation rises, the purchasing power of future earnings diminishes. This can lead to higher interest rates as central banks attempt to control inflation, which increases the discount rate used in valuing future earnings, thereby reducing the present value of those earnings. Consequently, stock prices may fall, leading to a lower PE ratio. Additionally, higher inflation can squeeze profit margins for companies, potentially reducing earnings and further impacting the PE ratio negatively. तो दिस इज व्हाट इट हैज आंसर्ड आपके सामने. अगर मेरे को एक्सप्लेनेशन नहीं आता है इसका, तो मैंने उससे पूछ लिया. अगर मेरे को बोलना है भाई छोटे हैं बोलना, कम बोलना, तो कम बोलेगा. मैंने बोला हिंदी में बोलना, हिंदी में बोलेगा. मैंने बोला हिंदी और इंग्लिश कम कंबाइन करके बोलना, कंबाइन करके बोलेगा. मैंने बोला थोड़ा सा कॉमेडी डाल के बोलना, कॉमेडी डाल के बोलेगा. जैसे मैं बोलूंगा वैसे बोलेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इफ यू आर नॉट यूजिंग, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन. ठीक है, अब नीचे में जो आंसर दिया हुआ है एग्जाम आंसर, ये मैंने ड्राफ्ट किया है. नीचे में जो आंसर दिया है मैंने ड्राफ्ट किया है. अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन 5% वर्सेस 3.5% डैश नेगेटिव इंपैक्ट ऑन पी रेशियो. शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट राइजिंग स्टीपली अनएक्सपेक्टेडली 4% वर्सेस 2% नेगेटिव फॉर इक्विटीज. नो सरप्राइज एलिमेंट इन जीडीपी ग्रोथ रेट. ओके, द पॉजिटिव एलिमेंट की जीडीपी ग्रोथ रेट 2 से 3% होगा. इट्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन. ये जरूरत नहीं था लिखने का, लिख दिया ऐसे ही. बिकॉज हमेशा टीचर हूं ना, तो आपको समझाने का बात होगा, इसलिए मैंने लिख दिया. रियल एस्टेट acts as an inflation hedge. Higher lease rentals and property prices due to unexpected inflation. Similar rates of return between equity and real estate. वो जो return 1009 दिया हुआ था ना. Conclusion: reallocate from equity to real estate due to inflation hedging and negative equity outlook. ये भी हो सकता है बड़ा लिख दिए, इसको भी छोटा कर सकते हैं. Use chat GPT. Use Gemini if you don't like chat GPT, if you like Google a lot. हर चीज में हम लोग यूज करते हैं. फॉर राइटिंग ब्लॉग्स, फॉर क्रिएटिव्स, फॉर डिजाइन्स, फॉर स्टडीज खासकर.
एनीवेज, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए. There's no need to change the screen, BD. Let the screen be like this, or you can stop screen sharing and open the question. Stop screen sharing, open the question. Oh, question is over here. ठीक है, question is over here. कैश और टिप्स का क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, increase the allocation to tips, decrease the allocation to cash. Option number B, increase the allocation to tips and cash both. Option number C, keep the allocation in cash and tips unchanged. जाहिर है ये मल्टीपल चॉइस की कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स में आएगा, तो वहां पे आपको पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा. जो सेंटेंस है, सेंटेंस छोटा रहेगा. यहाँ पे मैंने यहाँ मल्टीपल चॉइस के जैसे ज्वाइन कर दिया, सॉरी. Yes, I am waiting to see the answer. I am seeing the answers. Think holistically. BD, can we go up and show the asset allocation once? Can we go up and show the, yeah, this was the asset allocation. I said cash, long-term T-bonds and tips. They are the safer part of the assets. Equity real estate का पूछ लिया. High yield bond and international bonds are in between. So there are just first three, they are the safer portion of the portfolio. Last four are the riskier portions in the portfolio. Out of the riskier portions, isn't it strange that they're asking about cash and tips? Okay, tell me something before. What is the meaning of cash? वो लिखा हुआ ही है. तो कैश का मतलब, I hope you are sure that cash does not mean cash. कैश का मतलब है शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स, और शॉर्ट टर्म ही होता है, एंड सीडीज. One can consider cash matlab like floating rate bond. Cash could be considered to be short-term floating rate instruments, because if I invest for 30 days, after 30 days, I reinvest once again. If I invest for 30 days or 10 days, after 10 days, I reinvest once again. लिक्विड फंड में लोग लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, और फिर वापस 20 दिन बाद लगा देते हैं. थिंक दैट वे. थिंक दैट वे प्लीज. कैश को कैश मत सोचिए. थिंक दैट वे. The answer is option number B. We should increase allocation to both cash and tips by reducing allocation to long-term treasury bonds. We should increase allocation to both cash and tips, and we should pull away allocation from long-term treasury bonds. Maybe high yield bonds से भी निकालेंगे, but that's getting into the credit risk वाला area. ठीक है, तो आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट. मैंने आई वुड नॉट हैव रिटन एनीथिंग अबाउट दैट, बिकॉज़ क्रेडिट रिस्क एंड ऑल दैट पे चला जाएगा. इंटरनेशनल बॉन्ड में करेंसी ये सब आ जाता है, मैं क्यों वो सब में जाऊंगा. पर ट्रेजरी बॉन्ड तो जोर से गिरने वाला है. ट्रेजरी बॉन्ड जो है उस पे अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन होगा, तो ट्रेजरी बॉन्ड का तो रियल रिटर्न गिरेगा. जबकि टिप्स क्या देता है? रियल रिटर्न प्लस इन्फ्लेशन. टिप्स का नॉमिनल रिटर्न क्या होता है? रियल रिटर्न प्लस इन्फ्लेशन. तो जो रियल रिटर्न है वो तो टिप्स से आएगा ही, और आप पढ़े थे लेवल 1 में कि फेस वैल्यू बढ़ जाता है एज पर इन्फ्लेशन. तो टिप्स तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है. दैट्स एन इन्फ्लेशन हेज. डेफिनेटली टिप्स शुड बी गॉन फॉर, एंड कैश शुड आल्सो बी गॉन फॉर, बिकॉज अपने पास कैश शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा आएगा, उसको नेक्स्ट टाइम हायर रेट पे लगा देंगे. पैसा आएगा नेक्स्ट टाइम हायर रेट पे. ओके, नेक्स्ट टाइम हायर रेट पे. एनीवेज वी आर फोरकास्टिंग शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट टू राइज, सो विल बी एबल टू अर्न मोर ऑन कैश. बोल रहा है कि अगर हार्ड कैश होता, तो हार्ड कैश कभी जिंदगी में मैंने सीएफए में देखा नहीं है. कभी जिंदगी में मैंने हार्ड कैश देखा नहीं है. हाउ कैन यू थिंक दीपक दिस वे? फंड मैनेजर्स डू नॉट कीप हार्ड कैश. Yasser is saying that if I say tips and cash को overweight करना चाहिए, and I give the reason, but I miss out on treasury bonds का, it's an incomplete answer. They would like to see that you are saying that interest rate rise होने से अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, ट्रेजरी बॉन्ड गिरेगा, उसका रियल रिटर्न गिरेगा, जबकि टिप्स का रियल रिटर्न मेंटेन रहेगा, और प्लस हायर इन्फ्लेशन, तो नॉमिनल रिटर्न टिप्स ज्यादा देगा, और कैश जो है
वो तो शॉर्ट टर्म है, उसको री इन्वेस्ट कर देंगे हायर रेट पे, तो अकॉर्डिंगली कैश को भी इंक्रीज करना चाहिए। कैश में ड्यूरेशन रिस्क नहीं है, लॉन्ग टर्म टी बॉन्ड में ड्यूरेशन रिस्क है। ओके, दैट्स द वे इट हैज टू बी रिटन। लेट्स शो द आंसर। तो फर्स्ट आंसर इज द चैट जीपीटी आंसर। मैंने चैट जीपीटी से भी छोटा ही आंसर बनाया था। मैंने सीएफए इंस्टीट्यूट टाइप का आंसर तो दिया ही नहीं है। सीएफए इंस्टीट्यूट तो सीधा कोर रीडिंग को छाप देता है। मैंने कोर रीडिंग में जो जो लिखा हुआ है ना कैश के बारे में, छाप देता है जिससे आपका रिवाइज हो जाए। 1.5 पेज का आंसर। ठीक है। नीचे देख रहे हैं जस्टिफिकेशन टिप्स का। टिप्स में राइजिंग इन्फ्लेशन डैश हायर रिटर्न ऑन टिप्स, इंटरेस्ट रेट राइज एंड रियल रिटर्न ऑन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स विल डिक्रीज। कैश enables future investment at higher short-term rates. Conclusion: reallocate from long-term T bonds to tips and cash due to higher expected returns and flexibility. Flexibility मतलब कैश पे तो फ्लेक्सिबिलिटी है ना। ओके, इमर्जिंग सिचुएशन के हिसाब से सोच पाएंगे। So this is a fine question which is based upon differential forecasting. एंड आई डोंट थिंक ऐसा क्वेश्चन मैंने कोई कोर रीडिंग वगैरह में है। तो जब मैं मॉक बनाने बैठ रहा हूं अभी, तो ऑब्वियसली मॉक में आई एम नॉट गोइंग टू मेक मैंने क्या बोलते हैं जैकल जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पिल ऑफ वाटर। आई एम गोइंग टू मेक टफ क्वेश्चंस। You know that SSCI mocks are known to be a little bit tougher as compared to the institute mocks, and therefore I said you should give the institute mocks, you should give the Spicer mocks, but they won't be graded. Our mocks will be a little bit tougher, more explanative, and plus graded, plus audio feature. Okay, it makes 100% sense to go for. And if I don't find interest, and if I don't find interest of too many people in that, I'll stop going for grading and all that, because my opportunity cost is very high. If you are following me for the last few years, you know very well, okay, about my investment portfolio, arbitrage portfolio. Teaching is just a passion which I continue for the purpose of it. That too, CFA I'm more interested, less in CA. RS is saying that, sir, why don't we consider the fact that there are near-term future expenses to be met? RS, that was the meaning of flexibility. RS is saying that, sir, endowment का तो short-term future expense है ना, तो cash तो allocation पर cash बढ़ाने का ये reason नहीं होगा। RS, endowment का short-term माने operating expense है, उसके लिए cash को बढ़ाने का ये reason नहीं है। कैश होल्ड करते उस पर्पस के लिए, वी होल्ड लिक्विडिटी, बट यू कांट रीजन दैट दैट्स द रीजन व्हाई कैश शुड बी इंक्रीज्ड। क्या वो बोला है कि अपना अचानक से लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट बढ़ने वाला है, वी नीड मोर मोर एक्सपेंस? वो नहीं बोला है ना। सो आई थिंक यू आर गोइंग इन द लॉन्ग डायरेक्शन। यू आर गिविंग द रीजन दैट कैश क्यों होना चाहिए एसेट एलोकेशन में, आप उसका रीजन दे रहे हो, नॉट दैट कैश क्यों बढ़ना चाहिए। ठीक है, ओके। So that was a taste of how questions could be there. Okay, a taste of how questions could be there. Yeah, the question mentioned, so it was a, वो तो बोलेगा ही नहीं endowment में, कोई भी endowment है, endowment का आपने objective return नहीं देखे थे क्या? The spending rate plus, तो आप तो ऐसा बात कर रहे हैं कि इस question में कुछ नया दे दिया था। You are talking as if सर endowment के बारे में लिखा था, ये लोग को अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस मीट करना पड़ेगा। कौन सा endowment का क्वेश्चन किया है जिसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस मीट नहीं करना पड़ेगा? मैंने प्लीज बी मेच्योर्ड। You can't think that everything given in the question will be written in the answer. Okay. So this was a taste of what it is. Now let me go to the queries that came. और queries को मैं दिखाते हुए क्या लिखा हूं उसके सामने वो भी दिखा रहा हूं, और बहुत चीज तो मैंने बोल भी दी है। Queries for the August 2024 जो आप लोग queries आया था, two categories. First, constructive response. BD, can you take your cursor over there? First, constructive response, and the second category was study plan for the period left. ये दो क्वेरीज था। सबसे पहला तो जो रेड में लिखा है मैंने कि मॉक्स जो ग्रेडिंग फीचर के साथ है वो सेवियर होने वाला है। ठीक है, ओके। स्टूडेंट्स आर आस्किंग सर कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स में क्या दो ही क्वेश्चन आता है क्या 6-6 नंबर का? नो, 4 क्वेश्चन भी आ सकता है 3-3 नंबर का, 3 क्वेश्चन आ सकता है 4-4 नंबर का। वो तो डिपेंड करता है उनके ऊपर। 2 क्वेश्चन आ सकता है, एक 4 का एक 8 का। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा सीएफए इंस्टीट्यूट ने। इट डिपेंड्स अपॉन देम, इट डिपेंड्स अपॉन देम।
पहला क्वेश्चन आया टाइम मैनेजमेंट के बारे में, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स में टाइम कैसे मैनेज करें। तो द सिंपल थिंग इज दैट यू हैव द क्लॉक, 12 minutes is allotted for the question. You should not give more than 12 minutes into any question. 12 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। सर ऐसा नहीं हो सकता कि एक में ज्यादा दे दे एक में कम दे देंगे, नहीं। 12 मिनट से ज्यादा नहीं देना है आपको, ठीक है। तो और 50% टाइम आपको एलोकेट करना है इनटू थिंकिंग एंड 50% टाइम इनटू राइटिंग। 50% टाइम थिंकिंग, 50% टाइम राइटिंग। 50% टाइम थिंकिंग, 50% टाइम राइटिंग। एक इंपॉर्टेंट चीज बोलना भूल गया, जो यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। एक बार स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग एंड शो माय वीडियो। एक इंपॉर्टेंट चीज बोलना भूल गया, लिसन केयरफुली। जो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन है ना, कैलकुलेशन वाला, जो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है कैलकुलेशन वाला, कैलकुलेट द टारगेट रिटर्न, कैलकुलेट वाला क्वेश्चन में या तो न्यूमेरिकल बॉक्स रहेगा where you have to put the number, there is no scope of writing, you may do rough work in a separate page that they will provide, या फिर न्यूमेरिकल वाले में भी, सॉरी कैलकुलेशन वाले में भी टेक्स्ट बॉक्स रहेगा। आई थिंक आई एम कम्युनिकेटिव। कैलकुलेट वाले क्वेश्चन में या तो न्यूमेरिकल बॉक्स रहेगा या टेक्स्ट बॉक्स रहेगा। तो न्यूमेरिकल वाले में तो यू हैव टू पुट द नंबर, देयर इज नो स्कोप ऑफ शोइंग द स्टेप्स। बट जो टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, टेक्स्ट बॉक्स, उसमें वैसे तो अगर आप डायरेक्टली आंसर लिखते हो यू विल गेट फुल मार्क्स। सपोज द आंसर इज 12.2%, यू राइट 12.2, फुल मार्क्स। 8 नंबर का है तो भी फुल मार्क्स, जस्ट फॉर राइटिंग 12.2। यानी अगल बगल से चीटिंग कर ली अगर, तो ये 12.2 का फुल मार्क्स, ठीक है। स्टेप्स आर नॉट रिक्वायर्ड। हाउएवर, अगर आपने स्टेप्स दिखाया, प्रोसेस दिखाया, और अगर आपका 12.2 रॉन्ग आ गया से 10.7 आ गया, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक, या कहीं पे टैक्स का एडजस्टमेंट नहीं किए, इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट नहीं किए, तो जो आपने किया है उस पर पार्शियल मार्किंग होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कैलकुलेट वाला क्वेश्चन आया कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स में और उस पर टेक्स्ट बॉक्स में देना है आंसर, तो मेरे ख्याल से स्टेप्स दिखा देना। स्टेप्स दिखाने का मतलब है सजा सजा के नहीं, फॉर्मूलाज दिखा दिखा के नहीं। स्टेप्स दिखाने का मतलब केवल स्टेप्स रफली दिखाना, जिससे उसको समझ में आए ये क्या कर रहा था, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अगर फाइनल आंसर गलत भी आया, 12.27 इज द करेक्ट आंसर, मेरा आंसर आया 9.27, बिकॉज मैं टैक्स का एडजस्टमेंट भूल गया, इन्फ्लेशन का भूल गया, कोई छोटा सा मिस्टेक कर दिया, पर बाकी का राइट है, तो मेरे को पार्शियल मार्क्स मिलेगा। पार्शियल मार्क्स कितना मिलेगा ये मत पूछना, डिपेंड करता है मैंने कितना राइट किया है, कितना रॉन्ग किया है, ठीक है। तो मे आई रिपीट दिस थर्ड टाइम, कैलकुलेट वाला कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में जहां पे टेक्स्ट बॉक्स हो, वहां पे स्टेप्स दिखा देना गंदे से, सजा के नहीं, गंदे से, ठीक है। तो बीडी, कैन वी राइट इट ओवर देयर ऑन द एक्सेल व्हिच विल शेयर विद देम, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ द एक्सेल। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स में लिखो कैलकुलेट टाइप क्वेश्चन, कैलकुलेट टाइप क्वेश्चन, ओके। लिखो टेक्स्ट बॉक्स डैश शो स्टेप्स dirtily, show steps roughly, show steps roughly to get at least partial marks, to get at least partial marks, partial credits, ठीक है, partial credit, okay. So this is something that I forgot. You can decorate it. uh, सो टाइम मैनेजमेंट वाइज मैंने बोला 12 मिनट से ऊपर नहीं देना है, और 50% टाइम सोचना है। सोचना है मतलब पहले अपने को क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन रीड करके राइटअप में जाना है विनेट में, और राइटअप रीड करते समय केवल राइटअप का वो पोर्शन पे ध्यान देना है जो क्वेश्चन में बोला था, ओके। किसी और चीज पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। केवल उस पे जो 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 बोला था उस पे ध्यान देना है। जैसे अभी मैंने ये वाला सेशन हो रहा है, आई विल बी वेरी एक्टिव ऑन द लेवल 3 टेलीग्राम चैनल, एसएससीआई का लेवल 3 टेलीग्राम चैनल पे आई विल बी वेरी एक्टिव इन द नेक्स्ट 40 डेज। आई विल बी वेरी एक्टिव का मतलब ये नहीं कि सुबह से रात तक सब काम छोड़ के वहां बैठ जाऊंगा, बट यू विल फाइंड 2-3 डेज में कुछ ना कुछ शेयर होते जा रहे हैं, होते जा रहा होते जा रहा है, ठीक है। बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव सच सेशंस अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो बी कनेक्टेड ऑन द एसएससीआई टेलीग्राम चैनल। इफ यू फील दैट सर आप कुछ बोलते हैं लिखते हैं तो थोड़ा जोश आता है, पढ़ने का बूस्ट मिलता है, तो ठीक है, दैट्स व्हाट आई कैन डू, बट आई कांट एवरी डे कम इन द मॉर्निंग टू प्रोवाइड यू दैट बूस्ट।
अब है हाउ मच टाइम टू राइट एंड व्हाट टू राइट। तो मैंने लिखा है स्पेसिफिसिटी। सीएफए इंस्टीट्यूट को स्पेसिफिक चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। इसका सिनोनिम क्या होता है? ब्रेविटी। ठीक है, टू द पॉइंट लिखना है। डू नॉट ट्राई टू टीच, ज्यादा एक्सप्लेन मत करो कि पी रेशियो क्यों गिरेगा, ज्यादा एक्सप्लेन मत करो। डू नॉट कंस्ट्रक्ट फुल स्टेटमेंट, लंबा लंबा स्टेटमेंट मत कंस्ट्रक्ट करो। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स में आंसर दो, और जहां पे 2 या 3 रीजन पूछा है, या तो सेपरेट बुलेट्स दो या सेपरेट पैरा दो। ठीक है, डैश दे के आंसर करो। फैंसी वर्ड्स मत यूज करो। ओके, फैंसी वर्ड मत यूज करो। You want to state the importance of the US economy for the world economy. Don't write all that thing. If Uncle Sam sneezes, the entire world will catch a cold. फालतू में ज्ञानबाजी मत करो। ठीक है, तो do not write all that. Do not write अभी चार्ली मंगर का statement. He said that if the winner who is supposed to win wins and you bet on it, you will not earn alpha. फालतू बाजी मत करो। ठीक है, वो सब घर का explanation है। जैसे अभी दिखाए थे वैसे लिखो। ठीक है, थिंकिंग प्रोसेस, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, फोकस ऑन द कमांड वर्ड, थिंक इन हिंदी। ठीक है, ये जो मैंने बोला सारा कैलकुलेशन टाइप हो गया। नीचे आते हैं, और द पॉइंट इज दैट ये सब, ये अभी एक्सेल शीट को रीड करने से क्या आपका हो जाएगा? नहीं होगा। कोई एक्सेल शीट का ये 4 पॉइंट पढ़ लेगा तो एग्जाम में रट के 12 मिनट 12 मिनट 50-50। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा मॉक्स के थ्रू, और मैं ग्रेड करूंगा। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा मॉक्स के थ्रू, मैं ग्रेड करूंगा। ठीक है, तो प्लस जो मॉक्स ऑलरेडी है सीएफए इंस्टीट्यूट के, स्क्वाइजर के, वो आपको खुद को ग्रेड करना पड़ेगा समझते हुए। वो लोग का आंसर स्टैंडर्ड आंसर नहीं है, वो लंबा लंबा आंसर है। बिकॉज एक तो जोर आता है वो लोग को शॉर्ट आंसर बनाने में, ज्ञान दे देंगे शॉर्ट आंसर बनाओ, बनाएंगे नहीं। ठीक है, तो बड़ा बड़ा पूरा उठा उठा के को रीडिंग डाल दी है, तो आपको उससे शॉर्ट आंसर बनाना पड़ेगा। मेक द हैबिट कि मैं सारे के सारे मॉक्स जो अटेम्प्ट करूंगा उसका शॉर्ट आंसर बनाऊंगा। ठीक है, स्टडी प्लान फॉर द पीरियड लेफ्ट, सम टॉपिक्स आर अनकवर्ड। सर कुछ टॉपिक्स मेरा हुआ नहीं है, मेरा अभी पूरा का पूरा क्या बोलते हैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट जो है ना बाकी है, हेज फंड वाला पार्ट बाकी है। सर मैं क्या करूं? तो prepare them within the next 10 days from summary type materials like Squeezer. Squeezer is a very poor material for level 3. जो लोग भी फेल हो रहे हैं, पता कर लेना वो लोग स्क्वाइजर को चाट के ही फेल हो रहे हैं। जो लोग भी फेल हो रहे हैं वो लोग स्क्वाइजर को चाट के ही फेल हो रहे हैं। ओके, डज दैट मीन दैट मैं कोर को रीड करने बोल रहा हूं? नो। डज दैट मीन दैट मैं कोर को रीड करने बोल रहा हूं? नो। मैं बोल रहा हूं कोर रीडिंग का जो ब्लू बॉक्सेस है, कोर रीडिंग का जो एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस है, जो एग्जांपल्स है, उनको रीड करने। ओके, कोर रीडिंग का ब्लू बॉक्सेस ऊपर, बीडी ऊपर, ब्लू बॉक्सेस कैंडिडेट रिसोर्सेज, वो रिक्वायर्ड है। ओके, जो रेड में लिखा हुआ है ब्लू बॉक्सेस कैंडिडेट रिसोर्सेज, वो स्क्वाइजर से लाख गुना बेटर है। बट द पॉइंट इज दैट आपको किसी चीज का आइडिया नहीं है, तो अब कैसे आइडिया होगा? क्लासेस का वीडियो सुनने का शायद टाइम नहीं है, तो फिर स्क्वाइजर ट्वाइजर में जाना पड़ेगा, विच आर समरी मटेरियल्स, विच आर मटेरियल विच नॉर्मली कॉज अ फेलियर। बट स्क्वाइजर करके भी अगर बंदा बुद्धिमान है, क्या पता ब्लू बॉक्सेस कैंडिडेट रिसोर्सेज और मॉक से टान ले। एनालिसिस कैसे करे क्वेश्चंस का? चैट जीपीटी से, उससे आर्ग्यू करे, जैसे फ्रेंड से आर्ग्यू करते हैं। देखो जिनके पास अच्छे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, रात को 2 दिन में 3 दिन में या हर दिन रात को आधे घंटे 1 घंटे का जूम सेशन करो ना एक दूसरे के बीच में, जहां पे प्रोडक्टिव डिस्कशन हो। उसके पास कुछ कुछ है शेयर करने के लिए, तुम्हारे पास कुछ कुछ है शेयर करने के लिए। रोज आधे घंटे 1 घंटे जूम सेशन करो। सर मेरे पास फ्रेंड्स नहीं है, मैं अकेला हूं, मेरे को पता नहीं है। क्या आप व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते? एकदम भी नहीं। तो आपका फ्रेंड चैट जीपीटी 4o ऑडियो फीचर हो गया। तो आपका फ्रेंड चैट जीपीटी 4o ऑडियो फीचर हो गया। क्वेश्चन के आंसर्स को उसमें डालो, उसको बोलो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी में समझा, इंग्लिश में समझा, एग्जाम्पल देके समझा, इजी समझा, कम बोल ज्यादा बोल, एंटरटेन करके बोल। सर मैं भूलते जा रहा हूं, आई एम फॉरगेटिंग ऑल दैट आई हैव लर्नड, आई डिड एवरीथिंग, नाउ आई एम नॉट रिमेंबर, व्हाट शुड आई डू? इट्स नेचुरल, एवरीबॉडी फॉरगेट्स। इफ यू आस्क मी कि सर आपको याद है क्या ये सीएफए इंस्टीट्यूट का सीएफए लेवल 3 में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में हेज फंड में क्या क्या स्ट्रेटजीज था, उसके अंदर क्या था, कौन कौन सा बायसेस कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस के अंदर दिया हुआ, आपको याद है क्या? आपको डेफिनेशन याद है क्या? आपको उसका रिकमेंडेशन याद है क्या? नहीं याद है, मेरे को याद नहीं। ठीक है, बट अगर मैं क्वेश्चंस करता हूं, आई एम सुपर कॉन्फिडेंट। फोकस ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग, यू विल फॉरगेट, इट इज नेचुरल। सबसे बात है क्या, कोई फॉरगेट करता है तो क्या सोचता है मैं अकेला फॉरगेट कर रहा हूं, लगता है बाकी लोग नहीं फॉरगेट कर रहे। लेवल 2 में कमती फॉरगेट करते थे, उसमें भी करते थे, याद करो लेवल 2, पर उसमें अल्टीमेटली क्वेश्चंस था, ब्लैक शोल्स मॉडल, ये वो तो हो जाता था। फेल्ड हो गया हूं मल्टीपल टाइम्स, मैं 3 बार से फेल्ड हो गया, अब क्या करूं? तो आपने सुपरफिशियल स्टडी की है, जहां पे बैठे हैं सामने पर कुछ घुस रहा नहीं है, यू नॉट रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट यू आर स्टडिंग।
यू आर स्टडिंग बट यू आर नॉट रिफ्लेक्टिंग, सोच रहे नहीं है, वॉक नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट यूजिंग सम फ्रेंड सम चैट जीपीटी फॉर दैट पर्पस। आपका लैक ऑफ मॉक्स, आपका लैक ऑफ प्रैक्टिस है। ब्लू बॉक्सेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दो एग्जाम के पहले, फेब वाले एग्जाम में या उसके पहले वाले एग्जाम में, अमन लाडसरिया, ओके, एग्जाम दिया था, वो मेरे रिलेटिव लगता है, तो वो उसको मैंने ब्लू बॉक्सेस करने बोला था लास्ट के 40 डेज में। वो ब्लू बॉक्सेस से मेरे से डाउट पे डाउट पूछा था, वो डाउट्स को मैंने टेलीग्राम चैनल में शेयर किया था, वापस से शेयर कर दूंगा। क्या क्वालिटी डाउट्स था वो, और अभी भी रेलिवेंट है वो सारा का सारा। सम टॉपिक्स आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, तो इसका एक उपाय तो होता कि मैं उसका रिव्यू क्लास ले लेता। आई एम रियली सॉरी, अभी मेरे को पूरा मॉक्स खड़ा करना है, मॉक्स खड़ा नहीं हुआ है, ठीक है, तो मेरे पास इस समय तो समय नहीं है। ओके, जैसे लेवल 2 में रिव्यू क्लास था, वैसा स्कोप मेरे पास नहीं है इस बैच के लिए, तो अगस्त 24 के लिए। फ्यूचर में होगा तो उसका अलग फिर प्लैटिनम, प्लैटिनम प्लस प्राइसिंग का प्रोडक्ट भी निकलेगा, अंडरस्टैंड, ठीक है, तो सो अभी तो पॉसिबल नहीं है, यू हैव टू यूज चैट जीपीटी 4 और वट एवर रिसोर्सेस। Okay, so this was all from my side. I think I have taken around 1 hour of yours. That's too much. प्लीज अगर आपके पास दो तीन स्टूडेंट्स जो कायदे के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ ग्रुप बन सकता है, तो ग्रुप बना के रोज या हर 2 दिन में जूम सेशन करो, जहां पे प्रोडक्टिव डिस्कशन हो। वो 3 पॉइंट बताए कि मैंने 3 आइटम सेट किया, बहुत बढ़िया समझ में आया, तुम 3 पॉइंट बताओ। यू आर इंक्रीमेंटली मूविंग अहेड। बांटो टॉपिक्स को, वो अगर हेज फंड कर रहा है तो वो अच्छा है हेज फंड में, तुम हो सकता है किसी और टॉपिक में अच्छे हो, तो इन दैट केस बांटो और आगे मूव करो, ठीक है। All the best to all of you. Believe me, you can clear the exam because pass percentage for level 3, you know, pass percentage for level 3 क्या होने वाला है? I'm telling you right now, pass percentage for level 3 इस बार होने वाला है अराउंड 70%, 70। लेवल 2 का भी 60 हुआ है ना, लेवल 3 का 70%। हर 10 में से 7 जन पास होने वाला है, तो क्या अपने उस 7 में से नहीं आएंगे यार? कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? रिमेंबर दोज डेज जब लेवल 2 आने वाला था और क्या हालत खराब हुआ था, पास किए ना उसको, तो इसको भी क्यों नहीं पास करेंगे? ये वीडियो यूट्यूब पे चढ़ेगा, सारा का सारा जो दिए हैं वो डिस्क्रिप्शन लिंक में डाला हुआ रहेगा यूट्यूब पे, ठीक है। और टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहना, एसएससीआई का टेलीग्राम चैनल तो ओपन चैनल है, तो कनेक्टेड रहना। और क्या बोलते हैं, इनकेस किसी के पास वो है कि मैं टेलीग्राम नहीं पता कैसे ज्वाइन करूं, 9674006144, 9674006144 शर्मिष्ठा जी का नंबर है, वो आपको टेलीग्राम में ज्वाइन करवा देगी, ठीक है। तो दिस इज द वे यू गो अबाउट इट, एंड let's be connected on Telegram, and let's go for the mocks with grading feature, ठीक है। Okay, so bye bye, thank you.